Hello, Ria. Hi, sir. How are you? I'm good. How are you? I'm good. I'm good. ओके तो कैसा चल रहा है जर्मनी में? बिल्कुल बढ़िया सर। आप बताइए। मैं बढ़िया हूँ। तो ये इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दीजिए जिससे व्यूअर्स को पता चले एक बार, है ना? हाँ जी। So, as I say, my name is Ria Ahuja, and I started my master's in Germany last year, last 2023 in data science. हम्म। And currently, I'm in my fourth semester. I'm gonna start my thesis in next semester and complete my master's and start my hunting for a job, probably. ओके। सो जर्मनी ही क्यों चुना आपने? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड? आई थिंक यू ट्राइड First of all, another countries also, right? yeah, I have tried Canada हम्म। and then USA, but economically, Germany was the best because I got free education here. हम्म। यहाँ पे मेरे को ऑलमोस्ट कंप्लीट फ्री एजुकेशन मिला है। मेरे को सिर्फ अपना सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है विच इज़ अराउंड 30,000 INR. आई थिंक टू हंड्रेड 300 euros around, right? Yeah, it depends on the university as well. हाँ। So, my university is T universities, like, so basically universities in Germany are divided into two sets. It's public university and private universities. हम्म। So, मेरी यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, हम्म। तो उसमें यू दैट्स ऑल्सो, सो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आपको फ्री एजुकेशन मिलता है हम्म। एंड उसमें आपको कुछ सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देना होता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड फॉर हम्म। मेंटेनेंस। हम्म। तो वो अराउंड आपका डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। फॉर माय हम्म। यूनिवर्सिटी आई एम स्टडिंग करंटली इन टेक्निकल यूनिवर्सिटी ब्राउनश्वाइग व्हिच इज वन ऑफ द हम्म। universities from TU9. Okay, in which state is this? It's in Lower Saxony. Okay, Lower Saxony. Okay, so like नॉर्थ की तरफ हुआ है। हाँ जी। हम्म। हाम्बुर्ग और ब्रेमन से नीचे थोड़ा सा है। हाँ या Hamburg is 3 hours from my city. ओके। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि शायद वो जो कंट्रीब्यूशन लेते हैं सेमेस्टर का जो पैसे ले रहे हैं उसमें आपको सेमेस्टर टिकट भी तो दे रहे हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ना? हाँ, public transport is free all over Germany. Our transportation is free. We need not to pay anything. तो If we are इसमें traveling across any states, even some of the boundaries, like countries who are sharing their boundaries with Germany, they are also free. सो Like आई some थिंक parts of Netherlands are free for us. this is a good opportunity. Yeah. So like you are paying 30,000 rupees according to Indian currency. So this Yeah, is correct. worth it. Huh? So, Exactly. And तो that ऐसा। too, the semester contribution is just taken for 6 months. It's like हम्म। 2 times a year. That's it. Okay. Okay. So in 2 years you have to pay only twice. That's great. And Yeah. you can, yeah, Yeah. and you can travel uh, all around Europe, like all around Germany in two Correct, years. So correct, this correct. is awesome. I guess this is really great idea of the university, or I can say of the German government. So रिया, ये जर्मन, चलो ये तो आपने बता दिया कि जर्मनी ही क्यों चुना आपने, और ये जर्मन सीखने का मतलब जर्मन जर्मन कब से स्टार्ट किया आपने सीखना? I started learning German from हम्म। around 1 year before applying हम्म। to universities. I've हम्म। completed my A1 and A2 from हम्म। Gyanshala only. या। And it was a great experience because it helped me a lot. Because हम्म। even if your course is in English, for हम्म। talking to public, for do your common work, हम्म। for the daily life tasks, you need German. That's for sure. तो लाइक So कहीं कहीं ना it's, कहीं आपको ऐसा लगता है कि अगर आप B1 करके आते तो और शायद अच्छा रहता, राइट? yeah, but it's I mean it depends. A1 A2 में ऐसा होता है कि
A1 A2 से भी आपका जो डेली वर्क है, मतलब यू आर एबल टू कम्युनिकेट, एक यस। सिंपल सेंटेंसेस, हाँ, पर शॉपिंग। मेरा कहने का तात्पर्य है यहाँ पे कि अगर आपकी लैंग्वेज ज्यादा अच्छी होगी, अगर मान लो आप एडवांस करेक्ट लेवल करेक्ट करके आ करेक्ट, रहे हो, ऑफ कोर्स। तो आप लोगों से ज्यादा कनेक्ट हो सकते हो। आपको हो सकता करेक्ट है करेक्ट कम्युनिकेशन में ज्यादा आसानी हो, अच्छे से आप इफेक्टिव तरीके से अपनी बात को कह, ऐसा बोल करेक्ट सकते हैं, करेक्ट। है ना? ओके। और मुझे याद है कि एपीएस ने बड़ा परेशान किया था आपको शायद। हाँ, तो मेरे टाइम एपीएस वाज न्यू हाँ फॉर, हाँ। आई थिंक फॉर माय बैच एपीएस स्टार्ट हुआ था, एंड इट टुक मी अराउंड 4 months for हम्म APS. I have applied in APS in October, हम्म and I got my APS certificate in hand in next year, March. So हम्म। it's almost 5 months, 5.5 एंड months. और शायद वो डॉक्यूमेंट्स भी गुम हो गए थे उस टाइम पीरियड में ना? हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मेरा ये मैं दिल्ली गई थी, वहां पे मेरे को पता चला, जब भी मैं एपीएस का पता करने गई तो वहां मेरे को पता चला कि मेरे डॉक्यूमेंट्स ही उन लोगों से घुमा दिए। हम्म। फिर मैंने वापस से पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया, एंड देन आई गेट माय एपीएस आफ्टर 1 month। तो तो उस टाइम पे डिजिटल अभी था क्या? पर एपीएस अभी डिजिटलाइज हो गया है, तो इट्स नॉट अ इशू फॉर स्टूडेंट्स नाउ, यस। क्योंकि अभी मोस्टली सारे बच्चों को 1 महीना, मैक्सिमम 1.5 महीना के इंटरवल में मिल जाता है। और दूसरा, उस टाइम पे आपको हार्ड कॉपी रिसीव हुई थी एपीएस की, राइट? ये- हाँ, सिक्स मेरे की। को 5 हार्ड कॉपीज मिली थी, हम्म 5 हार्ड कॉपीज मिली थी एपीएस की। हम्म और उसमें से एक हार्ड कॉपी मेरी वीजा फाइल में जमा हुई थी, एक मेरी हम्म यूनिवर्सिटी में जमा हुई, हम्म। और बाकी मेरे पास है। ओके। ओके। तो जो कोर्स आपने चूज किया, डेटा साइंस, तो आज के टाइम में आई थिंक काफी नीड है इस कोर्स की। यही यही करेक्ट सोच के आने वाले फ्यूचर में भी डेटा साइंस का स्कोप बढ़ेगा ही, आई गेस। करेक्ट करेक्ट, आई मीन इट डिपेंड्स, अगर आप आईटी फील्ड से हो, हम्म और इफ यू आर मोर ऑफ इंटरेस्टेड इन एआई मशीन लर्निंग, तो हम्म then you can go for courses which are close to artificial intelligence or हम्म data science or fields like this. If you are interested in management or business, then you can go for business analyst or हम्म at business analysis. There are multiple courses available which are, combination of IT and business. हम्म तो कोर्स रिसर्च करना बहुत इम्पोर्टेंट है बिफोर अप्लाइंग टू जर्मन यूनिवर्सिटीज, हम्म क्योंकि अह, यहाँ पे इतने मल्टीपल कोर्सेज है, लाइक इंडिया हैव सर्टेन ब्रांचेस, एंड हम्म उन ब्रांचेस से आगे हम लोग नहीं जा सकते, बट यू कैन हियर चूज कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रांचेस, यू कैन क्रिएट हम्म। योर ओन ब्रांच। ओके। तो यहाँ पे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, इवन फॉर माय कोर्स मेरे हम्म कोई भी कंपलसरी सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। इट्स हम्म लाइक कि आई चूज एवरी सेमेस्टर व्हाट सब्जेक्ट्स आई वांट टू हम्म। सिट और आई वांट टू अप्लाई फॉर। ओके। एग्जाम्स में भी आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कि यू कैन चूज योर ओन सब्जेक्ट्स, आपको कौन से सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई करना है, कौन से सब्जेक्ट्स आपको लगता है कि आप इंटरेस्टेड हो, यू कैन गिव एग्जाम्स फॉर दोज सब्जेक्ट्स। तो जैसे आपने उस टाइम पे अप्लाई करा, तो कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करा था? सेम कोर्सेज के लिए क्या किया था या डिफरेंट कोर्सेज के लिए किया था? मैंने अराउंड सारे कोर्सेज एआई मशीन लर्निंग हम्म और डेटा साइंस के अराउंड ही लिए थे। तो हम्म आई अप्लाइड फॉर 6 universities, I guess, हम्म। and I got offer letter from 4 of them. ओके, फोर ऑफ देम यू गॉट द Or लेटर। yes, हम्म or if you are applying for technical, हम्म like if you're from IT background, or if you want to IT mechanics, and if you want something technical, so the most prestigious universities are the top TU9 universities. So if you ओके। get enrolled in any of these TU9 universities, then I mean, it's the best. ओके, तो यही यही रीजन रहा कि आपने, आप अभी जो आप मास्टर कोर्स कर रहे हैं जिस यूनिवर्सिटी से, उस यूनिवर्सिटी को चूज करा क्योंकि वो TU9 में है,
तो वो करेक्ट उसकी करेक्ट करेक्ट रैंकिंग अच्छी है, राइट? करेक्ट करेक्ट। ओके, राइट। तो जर्मनी से, सॉरी, इंडिया से जर्मनी तक का सफर कैसा रहा? उस टाइम में जब स्टार्ट आपने जर्नी करी, आपको पता चल गया। चलो उससे पहले थोड़ा सा ये बताओ, वीजा में कुछ रहा, कुछ प्रॉब्लम रही, कुछ हर्डल रहा आपको? हाँ ऐसा प्रॉब्लम नहीं, बट हाँ वीजा का, इवन इफ दे से यू कि वीजा आपका 2 वीक्स में आ जाएगा या 3 वीक्स में आ हम्म। जाएगा, हम्म। बट टेक इट एन अकाउंट कि वो 2 या 3 वीक्स का ड्यूरेशन नहीं लेते हैं। इट हम्म। एक्सीड्स, आई मीन फॉर मी इट टेक्स अराउंड 6 वीक्स फॉर मी टू माई वीजा, टू गेट माई ओके। वीजा इन हैंड। हम्म। और उसकी वजह से आई हैव बुक्ड माई फ्लाइट्स, देन आई नीड टू कैंसिल देम एंड देन आई रीस्केड्यूल दोज फ्लाइट्स एंड हम्म। सो थोड़ा सा एक बफर टाइम लेके चले वीजा के लिए तो दैट्स बेटर। इफ यू आर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मार्च में जाना है तो इट्स गुड दैट यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर वीजा इन दिसंबर ओनली। क्या बट रिया, रिया, तुम्हारे केस में तो क्या एपीएस लेट हो गया, बाकी एडमिशन तो आ ही गया था, तो इस वजह से वो वीजा लेट हुआ, है ना? आप अप्लाई But नहीं कर पाए। some हम्म। of the universities do not consider these requests and they actually cancel your admission or they just shift you to the next semester. Okay, you cannot give exams this semester or you are not enrolled anymore and you need to apply it again. So it's better कि हम बफर लेके चलें 4-5 महीने का। ओके, बट थोड़ी किस्मत भी तो काम करनी चाहिए, कभी कभी किस्मत काम ठीक से नहीं हाँ करती तो वो भी दिक्कत वाली बात है। आप सब कुछ ठीक कर करेक्ट रहे करेक्ट हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती। जैसे आपके केस में करेक्ट एपीएस लेट हुआ, एपीएस की वजह से वीजा लेट हुआ, राइट? तो करेक्ट जो करेक्ट आपने सोचा हुआ था, फिर वीजा अप्लाई भी हो गया, लेकिन उसमें टाइम लग गया। आप जो एक्सपेक्टेड टाइम लेके चल रहे थे 1 महीने का, उसमें 1.5 महीने लग गया, तो फिर करेक्ट वो फ्लाइट चेंज करनी पड़ी। तो कभी आगे करे आगे चीजें या कभी कभी हम जो चाहते हैं वो हो नहीं पाता, है ना? डेस्टिनी करेक्ट। बोलते हैं उसको। तो वो वो तो है डिपेंड ही। करता है कि आप कौन से टाइम जोन में चल रहे हो और आपका टाइम कैसा चल रहा है, वो भी मैटर करता है, राइट? करेक्ट। ओके, चलो वीजा मिल गया, उसके बाद का सफर, क्या एक्साइटमेंट थी? पहली बार जर्मनी जा रहे थे, घर से दूर? I honestly, I honestly do not had any contacts in Germany हम्म। before I come here. So I, uh, उससे पहले before coming to Germany, it is also advisable that you have your own accommodation booked, हम्म। क्योंकि accommodation यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर है, हम्म। क्योंकि उसमें कम से कम अराउंड 6-7 महीना लग जाता है ढूंढते ओके, ढूंढते। तो आपके केस में आपने एकोमोडेशन पहले से ही बुक कर ली थी, या क्या, कैसे रहा? हाँ मैंने इंडिया से एकोमोडेशन बुक कराया था हम्म। using applications. There are a lot of applications available on Play हम्म। Store. हम्म। You can simply search for rental apartments over there and book your. या तो लेकिन मैंने ऐसा भी सुना है कि आजकल स्कैम भी काफी हो रहे हैं इस रेंटल एग्रीमेंट के, लोग करेक्ट ना। करेक्ट, बहुत बहुत स्कैम्स होते हैं तो हम्म। अ, कोई भी अपार्टमेंट व्यूअर के लिए हम्म। अगर दे आर डिमांडिंग हम्म। एडवांस रेंट, सो यस। इट इज अ स्कैम बिकॉज हम्म। जर्मनी में एडवांस रेंट जैसा सिस्टम नहीं होता है। So हम्म। you can first see the apartment and then if you are comfortable with that, then you can नहीं, proceed with लेकिन it. कॉशन मनी तो होती है ना, कॉस्ट्यूम तो लेते हैं ना 2 महीने का हाँ 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 वो होता है। पर वो that too after you sign the कॉन्ट्रैक्ट। agreement, yeah, ओके। contract. Before signing contract, there is no such fees. अभी अभी रिया क्या हुआ है, एक स्टूडेंट है, उसका मागदेबुर में एडमिशन हुआ है, तो वो कोई अपार्टमेंट सर्च कर रहा था, तो अपार्टमेंट मिला, उन्होंने फोटो भेजी और उसको एक फॉर्म बच के भेजा उन्होंने कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसको भरो, और 400 यूरो इसका रेंट है, और 1 महीने का एडवांस ये ट्रांसफर कर दो। तो मैंने उसको एडवाइस किया कि यार स्कैम काफी हो रहे हैं, तो बी केयरफुल। तो करीब अगर तुम ये पैसा ट्रांसफर करोगे, करीब 1 लाख रुपए आप दे चुके होगे शायद, है ना? वो पहुंच चुका होगा अगर There is a तुम्हें। system in, हाँ या exactly, यहाँ पे एक सिस्टम है कि आप अपार्टमेंट्स को आप विजिट कर सकते हो बिफोर मूविंग इन एंड नो अपार्टमेंट, I mean the landlords cannot deny for apartment या visits.
If they and are they denying, that uh, means it is a scam. या देन क्या व्हाट हैपन, मेरी एक नोन है जर्मनी में, तो मैंने उनको कॉन्ट्रैक्ट, उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट भेजा, तो मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिखाया, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट इंग्लिश में। तो वो शी वाज सरप्राइज्ड कि जर्मनी में इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट होना नॉर्मल बात नहीं है। तो उसको भी बड़ा अटपटा सा लगा थोड़ा सा, कि ऐसा होता नहीं है पर अगर कि हाँ, जनरली। यूजुअली ऐसा नहीं होता है, पर हाँ अगर हम बिग सिटीज की बात करें, हाँ। जैसे बर्लिन, म्यूनिक, हम्म तो cities like these, there are a lot of English speaking people. हम्म। तो there लेकिन is possibility कि या आपका agreement और या जो भी document है वो या English में आ लेकिन जाए। फिर क्या हुआ कि मैंने बोला कि उनसे बोलो कि आप होल्ड पे रखो उस प्रॉपर्टी को, मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट मंथ, ओके, आई विल सी इट, देन आई विल पे द अमाउंट ऑन द सेम डे। करेक्ट, तो करेक्ट। लेकिन उसे डिनाई कर दिया, तो मैं मे बी इट इज स्कैम। हाँ, तो it is a scam then, या सो क्योंकि कोई भी अगर रेंटल प्रॉपर्टी को दिखाने से मना करता है तो it is a scam for sure. या फोटोज तो फेक भी हो सकते हैं, फोटोज का क्या है। Photo for, of course. यस। तो बाकी तो यूनिवर्सिटी में आपका हो ही गया, वीजा टाइम पे मिल गया, जर्मनी आ गए, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा जर्मनी पहुंच के आप। uh, सबसे बड़ा चैलेंज वेदर, स्टूडेंट्स के लिए है कि वो वेदर। अपने वेदर वाज नॉट अ प्रॉब्लम इफ यू आर टेकिंग समर इनटेक, क्योंकि यहाँ पे या वेदर अच्छा रहता है हाँ, आप समर्स में। समर में आए थे, राइट। अराउंड, हम्म हाँ जी, तो इट्स हम्म अराउंड 25-30 डिग्री हम्म सेल्सियस, सो इट्स प्रिटी गुड। हम्म तो सर्वाइविंग वेदर होता है। और बट हाउ यू डील विद स्टडीज, और फिर घर का काम और बाकी चीजें मैनेज करना, तो हम्म दैट इज a issue. Or for the very first month, you need to deal with city registration, health हम्म insurances, and there are a lot of bank. You need to open your bank accounts. तो हम्म। बहुत सारा काम हो जाता है, तो वो सब मैनेज करना विद यूनिवर्सिटी इज अ चैलेंज। हाँ, अपॉइंटमेंट लीजिए, 2-3 विजिट होंगी तब करेक्ट, अकाउंट ओपन होगा, राइट। या करेक्ट, करेक्ट। और उसे और यहाँ ब्लॉक। पे अपॉइंटमेंट्स का भी आप बहुत, आई मीन, यू इट्स नॉट इजी टू टेक एन अपॉइंटमेंट। उसके लिए आपको बहुत वेट करना पड़ता है। अगर आपको सिटी रजिस्ट्रेशन का भी अपॉइंटमेंट चाहिए तो यू नीड टू बुक इट इन एडवांस फॉर 1 month यस। और 15 days। एटलीस्ट टेक दिस बफर। एंड व्हाट अबाउट लाइक ब्लॉक्ड अमाउंट, तो ओपन किया ही होगा, वो किसमें किया था आपने। तो it is compulsory to have a blocked account when you यस। are coming as a student in Germany. So I have opened it with Expatrio, and आपका कुछ 11,000 सम अमाउंट, यूरोज। 11,000 यूरोज। यूरो कुछ जमा होता है। दैट्स अराउंड 10 लाख, साढ़े 10,50,000 अक्रॉस। एंड वो एक्सेस तभी मिलता है जब आपका सिटी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जैक्टली, घर होना नो, जरूरी है, परमानेंट एड्रेस आप होना जरूरी है, राइट। नहीं, आपको बैंक अकाउंट का, द मोमेंट यू अराइव इन जर्मनी यू कैन हैव हम्म एक्सेस टू योर एक्सपाट्री अकाउंट, बट हम्म उनके से वो कार्ड भी प्रोवाइड करते हैं दैट यू कैन यूज फॉर योर ट्रांजैक्शंस। हम्म But the moment you have your own bank account, you can just link your bank account to your expatriate account. Then they हम्म simply give you हम्म। some amount every month. या तो लेकिन रिया, यहाँ पे दिक्कत ये है कि बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास परमानेंट एड्रेस होना जरूरी है ना। Uh, हाँ, for bank account, yes. या Or जब you तक, can show that you are relying on some person and then you can just open it. या बट लेकिन अगर सिटी रजिस्ट्रेशन करोगे तो अगर एड्रेस परमानेंट नहीं है तो वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स करते हैं, आई मीन, नॉट हाँ हाँ। एवरीवन गेट अपार्टमेंट्स इन वन हम्म गो। तो हम्म लोग सबलेट्स पे देते हैं, एंड हम्म सबलेट्स पे दे टेक द सिटी रजिस्ट्रेशन। फॉर सिटी रजिस्ट्रेशन इट्स नॉट लाइक कि आप एक ही बार करवा सकते हो। जब आप आए हो सिटी रजिस्ट्रेशन, यू कैन चेंज योर सिटी रजिस्ट्रेशन एवरी ओके। टाइम यू चेंज योर एड्रेस। हम्म। So you can temporarily do a city registration on someone else's address for a while. You open your हम्म bank account and then you can sh-
make an appointment for another city registration after you move to your permanent ओके। apartment, then you can change your address क्योंकि in Bangkok. क्योंकि मैंने ये भी सुना है और मैं खुद जर्मन में रहा हूँ, तो एक तो मेल्स बहुत आती हैं, चिट्ठियां बहुत आती हैं आपके मेल बॉक्स में ना कुछ बहुत बार। पढ़, बहुत हाँ, ज्यादा करेक्ट कुछ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। या और फर्स्ट आई मीन फॉर द फर्स्ट मंथ यू हैव अ लॉट ऑफ लेटर्स, क्योंकि आपका हम्म टैक्स आईडी बनता है, आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर बनता है, आपके बैंक के बहुत मेल्स आते हैं, तो हम्म। yeah, बहुत एंड दे बिलीव इन लेटर सिस्टम ओनली। या ईमेल But राइटिंग now they तो। are, हाँ हम्म exactly, now they are shifting to more of digital emails, but it's हम्म। हाँ, अभी अभी mostly letters only. इन्होंने अनाउंस किया है वीजा भी डिजिटल कर रहे हैं लोग पूरा। हाँ, वीजा भी डिजिटल हो गया, करेक्ट। तो बहुत ठीक ठीक रहेगा। ओके, तो आपने बताया कि चैलेंजेस ऐसा कुछ नहीं था, है? बस यही था कि आप किसी को नहीं जानते थे, यही सबसे बड़ा चैलेंज था उस टाइम पे, कि कैसे और सर। आपके रोज के काम मैनेज करना, ऑल्सो जो जर्मन यूनिवर्सिटीज का स्टाइल है, द वे ऑफ टीचिंग हियर इज कम्प्लीटली डिफरेंट दैट व्हाट वी हैव लर्नड सो फार इन इंडिया। हम्म इट्स इट्स अ ह्यूज चेंज। हम्म। आपको एक सेमेस्टर तक समझ ही नहीं आता है कि आपको पढ़ना कैसे है, तो ओके वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ओके। क्योंकि और यहाँ का एग्जामिनेशन सिस्टम पूरा कम्प्लीटली डिफरेंट। इट्स नॉट हम्म। कि आप एक बुक पढ़ के चले जाओगे एंड यू कैन जस्ट पास द एग्जाम, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स रियली डिफिकल्ट। ओके। एंड क्या डिफरेंस है इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में और जर्मनी की? अभी क्योंकि आपने इंडिया में पढ़ाई करी है, ठीक है, अभी आप मास्टर कर रहे हो, तो क्या डिफरेंस आपको आपकी नजर से नजर आता है कि ये बहुत इंडिया बड़ा? में इट्स ऑल अबाउट कि आपको एक सिलेबस दिया हुआ होता है, उस जी। सिलेबस में आपके सर्टेन पैटर्न्स होते हैं, उन पैटर्न के बाहर आपका कोई एग्जामिनेशन नहीं जाता है। हम्म जर्मनी में दिस इज नॉट लाइक दैट। यू हम्म आर गिवन सर्टेन, यू आर ऑफ कोर्स गिवन सिलेबस, हम्म। बट थिंग्स कैन रिवॉल्व अराउंड दैट सिलेबस। उससे आसपास से जुड़ी हुई बातें भी आपको, इट्स योर ड्यूटी टू लर्न दोस। अगर आपको लेक्चर में पढ़ाया नहीं भी जा रहा है तो यू नीड टू लर्न इट। ओके। तो सो आपको सब प्रैक्टिकल भी। काम खुद से करना है। हाँ, हाँ इट्स हाँ आई वुड से इट्स नॉट प्रैक्टिकल, इट्स हाँ। मोर ऑफ रिसर्च। ओके। हम्म रिसर्च में ये लोग बहुत फोकस करते हैं। हम्म प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए यू नीड टू वर्क ऑन ऑन योर ओन। हम्म। इधर ओके, कुछ। इंडस्ट्री बेस्ड हम्म कोर्सेज नहीं होते हैं। अगर हम्म इफ यू आर कमिंग टू यूनिवर्सिटाज, हम्म। तो रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज है, तो बिफोर choosing your course you need to focus on the universities as well. If you are coming to a research based universities and you are expecting कि वहाँ पे आपको practical industrial based कुछ पढ़ाया जाएगा, तो this is not the case. आपको ओके। mostly नाउ टू। रिसर्च बेस्ड ही पढ़ाया जाएगा। हम्म। अब मुझे बताओ, दो अच्छी बातें जर्मनी की और दो खराब बातें जर्मनी। क्या क्या दो अच्छी बातें आप काउंट करेंगे और दो कोई खराब बातें जो क्या काउंट करेंगे? जर्मनी में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। दूसरा, ये। और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम आई लाइक इट, इट्स ओके। इट्स गुड। ट्रांसपोर्ट। It, transportation, of course, public transportation is very nice in Germany. ट्रेन लेट नहीं आती हैं? Uh, यहाँ हाँ, पे if I say intercity transport, that is a issue, क्योंकि हम्म। यहाँ पे जो ट्रेन्स का डिले है वो इंडिया से भी आई गेस ज्यादा ही होता है। अच्छा। तो इट्स वेरी अनसर्टेन कि कभी भी ट्रेन डिले हो जाता है। ओके पर अगर हम सिटी में ही अंदर ओके। एस ट्रांसपोर्टेशन वन का एस बात वन और करें, U वन की बात करें तो, हाँ, वो ठीक है। हाँ, तो दैट इज वेरी फ्रीक्वेंट और वो एकदम रेगुलर है। ओके। और जो जिस सिटी में आप अभी हो वो कितनी बड़ी है? क्या पॉपुलेशन है उसकी? uh, I do not have an idea about population, but it is very smaller than, it's about one fourth of Berlin. ओके। सो अरी So हो सकता it's है quite small, हाँ। या 1 लाख के आसपास या 2 लाख लोग हाँ होंगे हाँ, शायद, करेक्ट मैक्सिमम। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके। हैपनिंग नहीं है ज्यादा ऐसा? नहीं हैपनिंग तो जर्मनी में ओनली वीकेंड्स आर हैपनिंग।
बाकी हाँ। आपको शांति दिखेगा इफ यू आर लिविंग इन स्मॉल सिटीज लाइक नवसारी। और संडे को कितनी शांति रहती है। संडे तो इट्स ऑलमोस्ट क्लोज, इट्स ऐसा लगता एवरीथिंग है इज जैसे क्लोज कर, एक्सेप्ट कर, रेस्टोरेंट्स, कर, यस। कर, कर्फ्यू लग गया है, जैसे कोई दिखता ही नहीं है। करेक्ट करेक्ट, कोई भी नहीं दिखता है। ओके, तो दो अच्छी बातें आपने बताई। एक तो एजुकेशन, और यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ अलग है, पर्सनल लाइफ अलग है। ओके, तो वीकेंड पे सिर्फ रिलैक्सेशन की बात होगी, पार्टी की बात यस। होगी। यस, गुड है। ओके, एंड दो खराब बातें, जैसे एक तो आपने बताया इंटरसिटी एक्सप्रेस, अगर वो ठीक नहीं है, और दूसरा। हाँ, वो और दूसरा कि they are even if people know English here, they do not prefer to speak in English, they prefer to speak in German only। ओके। तो वो अपने लैंग्वेज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। हाँ, हाँ। तो ये ये जॉब्स में जब हम बात, मतलब जब बात आती है जॉब हंटिंग की, तो दिस इज अ हम्म, इशू देयर एज वेल। या मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जब मैं भी था तो हम लोग जाते थे, दोस्तों के साथ बैठे, वो जर्मन थे। तो हम उनको बोलते थे, भाई हमको जर्मन नहीं आती, आप इंग्लिश में बात करो, तो मैं इंग्लिश आती है। तो 2 मिनट वो लोग बात करते थे, वापस फिर वापस जर्मन में स्टार्ट हो जाते थे। तो yeah, ऐसा they हो, do not compromise with their language। ऐसा होता Exactly। है। गुड। तो अब रिया, क्या टिप देना चाहोगे स्टूडेंट्स को आप, कि अगर वो जर्मनी का प्लान कर रहे हैं, तो किन चीजों का उनको ध्यान रखना चाहिए जो उनके लिए यूजफुल रहेंगी फ्यूचर में। फर्स्ट ऑफ ऑल डेडलाइंस का, क्योंकि हम्म। अगर आप लास्ट मिनट काम करोगे तो सारी चीजें, इट्स नॉट वर्थ इट। आपका हो सकता है कि आप ऑन टाइम नहीं पहुंच हम्म। पाओ। हम्म। सेकेंडली, जर्मन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम्म। एज आई सेड दे डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद देयर लैंग्वेज, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट और ओवर और देयर। पता है, जब आप जॉब हंटिंग जैसे बोला, जॉब सर्च करोगे ना, तो वहां हाँ, पे अगर आपकी दे लैंग्वेज अच्छी प्रेफर होगी। जर्मन स्पीकिंग। यस, यस, वहां पे एग्जैक्टली इस चीज एग्जैक्टली। का फर्क पड़ता है। मैंने अभी काफी इंटरव्यू किए हैं बच्चों के साथ, तो वो बच्चे ये रिकमेंड कर रहे हैं कि जितना हो सके आप जर्मन सीख के आए इंडिया से। कई बच्चे सोचते हैं हम एग्जैक्टली जर्मनी एग्जैक्टली। जाके सीख लेंगे, लेकिन जब आपकी पढ़ाई स्टार्ट होती है, आपका टाइम ही नहीं होता है। तो नहीं वो टाइम हो नहीं होता है, पाता, वो करेक्ट। कहीं ना कहीं फिर सफर करते हो उस चीज से ना। तो आपका भी यही सजेशन है कि जितना हो सके जर्मन इंडिया से सीख के आए। ओके। ओके, और करेक्ट। और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से आई विल सजेस्ट कि वो पहले से रिसर्च कर ले कोर्सेज के बारे में, तो इट्स बेटर। ऐसा ना हो कि यू वांट अ प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स एंड यू गेट हम्म। एनरोल्ड योरसेल्फ इन अ रिसर्च बेस्ड कोर्स, हम्म। तो फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी चेंज करना इशू हो जाता है। हम्म। बट देयर इज दिस फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल कि if you are not liking your course, even after 1 semester 2 semester, you can skip that course and move to some other course, and you can just transfer your credits which you have made in your previous course to other course। ओके, एंड होम सिकनेस रही, आपको घर की याद आती थी शुरुआत में? Winters are, हाँ, winters में it's winters are depressing, इंटेंस। quite depressing। yeah, it's क्योंकि 3 बजे अंधेरा हो जाता है and you have only 9 बजे सुबह हो रही है और ऑलमोस्ट 3 बजे अंधेरा हो जाता है, तो बहुत कम टाइम रहता है जिसमें आप एक्चुअली प्रोडक्टिविटी निकाल पाओ। तो राइट। विंटर्स आर रियली डिप्रेसिंग, और विंटर्स में लोग भी नहीं दिखते आसपास, तो नहीं, और घर की तब याद होम आई थी। सिकनेस ओ, मिलेगी। अच्छा, तब होती है उस टाइम पे है, कोई दिख नहीं रहा। हाँ। कोई ओके, दिख वैसे नहीं रहा है, एग्जैक्टली। जनरली आपको जैसे इंडिया से तब आए उस टाइम पे जनरली नहीं थी। इतना इतना काम होता है डेली का, तो हाँ, हाँ। उसमें टाइम ही नहीं मिलता है ये सब चीजें सोचने का। बाकी क्योंकि फिर, यूनिवर्सिटी का काम करो, घर पे आके खाना बनाओ और हाँ, बाकी काम करो, तो हाँ, उसमें टाइम ही नहीं मिलता है। तो खाना घर पे खुद ही बनाते हो आप, ऐसा? हाँ जी। क्योंकि तो यू कैन नॉट सर्वाइव, अभी ऐसा यूनिवर्सिटीज में कैंटीन्स मेंसास होते हैं, हम्म। बट वहाँ का फूड इज नॉट एज पर एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंडियंस, हाँ, क्योंकि वी लेकिन प्रेफर क्या बोल, स्पाइसी कई खाना। कई बार क्या होता है, मन नहीं भरता कि वो खाना जो अपन को हम एडिक्टेड है, वो नहीं मिलता। चलो, 1 महीने काम चल गया, लेकिन एक 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 करेक्ट लेवल आता है कि यार वो उस खाने की याद आ रही है, तो अब अगर वो मिल जाए तो मजा आ करेक्ट जाए, है ना, वो रहता है थोड़ा करेक्ट। सा। दैट्स ग्रेट। गुड। तो विंटर चैलेंजिंग है, तो बच्चों को उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि
हम लोगों को बट आदत नहीं मोस्ट होती ऑफ द बेटा। जर्मन यूनिवर्सिटीज जो मेजर इनटेक होता है जर्मन यूनिवर्सिटीज का वो विंटर ही होता है। जी। आई मीन विंटर इनटेक इज मेजर इनटेक, और समर हम्म। इनटेक में यहाँ पे कम ही यूनिवर्सिटीज ऑफर करती है एडमिशन। तो दैट्स एन इशू। तो हम्म। जो लोग जो स्टूडेंट्स विंटर्स में आते हैं डायरेक्टली, हम्म। तो वो एक परसेप्शन अपना आते ही बना लेते हैं कि जर्मनी इज नॉट गुड, और उनको हम्म। फिर सेट होने में दिक्कत होता ही है। हम्म। सही है। तो एक्सपीरियंस जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनके एक्सपीरियंस से चलें, उनकी जो टिप्स जो दे रहे हैं उनको लें, उसी पे अमल करें, खुद ही नहीं सोचे कि ऐसा वैसा ये सारी चीजें, क्योंकि पहुंच के जब रियलिटी अलग ही होती है, राइट। तो करेक्ट रियलिटी करेक्ट पे करेक्ट विश्वास करना चाहिए अपने को। So Ria, thank you करेक्ट। so much for the nice tips, and you shared your experience about Germany, and I hope it will help a lot who are coming to Germany. So I hope for the best for them, and I I I, I wish you good luck for your master thesis थैंक यू सो मच। and थैंक यू for your सो मच job सर। hunting also. Yeah. या So thank you so much. थैंक यू।